Welcome to the online lecture of Sharadvi More English High School. Okay, so students, today I'm going to start with a new chapter, chapter number 6, indices. Okay, so first, let's recall. Each of 7 children was given 4 books. Total notebooks 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 means 4. कितने times लिखा हुआ है? 7 times. Means के 7 children है और हर एक बच्चे को 4 books given है. तो टोटल बुक्स अगर आपको काउंट करना है, सो व्हाट यू विल डू, आइदर ऑफ द मतलब आप फर्स्ट मेथड में क्या करोगे कि 4 को 7 टाइम्स ऐड करोगे, राइट? 4 प्लस 4 प्लस 4, राइट? In this way you are going to get 28. So in second one you can see here addition is operation that is carried out repeatedly. Means addition को क्या कर रहे हैं हम लोग, repeatedly बार बार क्या कर रहे हैं, perform कर रहे हैं, right? So addition of same number again and again can be shown as multiplication. Total notebooks is equals to 4 plus 4 plus 4 means आप 4 को कितने times add कर रहे हो, 7 times. So instead of doing that, what you will do, you will multiply 4 by 7. So that is 4 into 7 means 28. It means ये क्या किया आपने, आपका जो ऑपरेशन था रिपीटेड ऑपरेशन दैट इज एडिशन, आपने उसको एक शॉर्ट में मतलब शॉर्ट मेथड यूज करके आपने क्या किया, इंटरप्रेट किया. मींस आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग एडिशन अगेन एंड अगेन यू हैव यूज्ड द मल्टीप्लिकेशन जस्ट वंस. मींस आपने 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया. 4 मल्टीप्लाई बाय 7 going to give you 28 again the same answer. Means instead of adding this 7 time you have to multiply 4 by 7. So इस तरीके से इंडाइसेस का भी रूल है, बेस एंड इंडेक्स. So let's see what is the concept. Let us see how the multiplication of a number by itself several times is expressed in short. Means जैसे हम लोग ने एडिशन को देखे, राइट? कि एडिशन को अगर आप मल्टीपल टाइम्स क्या कर रहे हो, रिपीटेडली कैरी कर रहे हो, मीन्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स, सो यू कैन express it at like this. 4 into, for example, if you are adding 2 4 times, 2 plus 2 plus 2 plus 2. So you can express it as 2 multiplied by 4, right? So if you are carrying out multiplication repeatedly, how can you express it in the short way? Okay, so let us see. So 2 into 2, here you can see 2 is multiplied how many times? 8 times. So this can be written as 2 raised to 8. Got it? मीन्स आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो. मीन्स एक पर्टिकुलर नंबर को अगर आप रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो कितनी टाइम्स आपने उसको मल्टीप्लाई किए, सो आप क्या करोगे, उसको एज अ पावर लिखोगे. मीन्स आपने यहाँ पे 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो यू विल राइट 2 raised to 8. सो दैट इज द index form of that particular number. Okay, this is the index form of the multiplication. And what is the base and index here? Here 2 is called the base. Base क्या हो गया, 2, राइट? जिसको आपने पावर दी है, सो दैट इज बेस. एंड जो उसका पावर है पर्टिकुलर नंबर जिसको आपने स्मॉल मैनर में लिखी है टॉप पे, दैट इज इंडेक्स. ओके, और द एक्सपोनेंट, यू कैन से इट एज द इंडेक्स और एक्सपोनेंट. सो हियर इट इज कॉल्ड एज इंडेक्स फॉर्म and 2 is called as index, sorry, 2 is called as base and 8 is called as index or exponent. Got it? Concept clear हुआ? Now let us see further more example. 5 multiplied by 5 multiplied by 5 means यहाँ पे आपने क्या करे, 5 multiplied by itself 4 times, मतलब 5 को आपने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किए, 4. so you can express it is in the index form. अगर आपको इसको इंडेक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट 5, कितनी बार मल्टीप्लाई किया आपने, 4. सो यू विल राइट हियर 4, 5 raised to 4. गॉट इट? So here now 5 is the base and 4 is the index. आप उसको रीड कैसे करोगे, दिस इज रीड एज 5 पावर 4 और 5 raised to 4. ओके, मीन्स आप रीड कैसे करोगे इंडेक्स फॉर्म को और 5 raised to the power 4. गॉट इट? और यू कैन से इट एज the fourth power of 5 means fourth power of 5. आगे इसके बेसिस पे हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं. ओके, मीन्स जो आपका पर्टिकुलर इंडेक्स फॉर्म है उसको वर्ड्स में आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो. रीड a raised to m as मीन्स जनरल फॉर्मेट में गिवन है कि a raised to m क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर का इंडेक्स फॉर्म है जहां पर a बेस होगा, m क्या होगा, पावर होगा. तो आप उसको रीड कैसे करोगे, a raised to the power m. मतलब रीड करने का तरीका क्या है, a raised to the power
m, ठीक है. और यू कैन से द mth पावर ऑफ a मीन्स द mth पावर ऑफ a. आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो. गॉट इट. नाउ फर्दर 5 रेज टू 4, 5 रेज टू 4 को अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब ये तो इंडेक्स फॉर्म है, अगर आपको इसको सॉल्व करना होगा तो आप कैसे करोगे, 5 रेज टू 4 मतलब 5 जो नंबर है वो खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. और जब आप उसको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा. मीन्स 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625. So in this way you have to solve the index form of a particular number. Got it? So now let's start with the first practice set 26. First question, complete the table below. अब देखो आपको टेबल गिवन है जहां पर एक नंबर गिवन है जिसका इंडाइस मतलब इंडेक्स फॉर्म गिवन है नंबर का, उसका बेस है. देखो कितने कॉलम से, फर्स्ट तो इंडाइसिस का कॉलम है जहाँ पे एक नंबर उसके इंडेक्स फॉर्म में लिखा गया है. गॉट इट. देन नेक्स्ट कॉलम में उस पर्टिकुलर इंडेक्स फॉर्म का आपको बेस पिक करना है. सेकेंड कॉलम में उसका इंडेक्स बताना है आपको. थर्ड इसके नेक्स्ट कॉलम में आपको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म करना है. मल्टीप्लीकेशन फॉर्म मतलब उस पर्टिकुलर इंडाइसिस फॉर्म का मल्टीप्लीकेशन फॉर्म. मतलब 3 रेज टू 4 है तो आप उसको कैसे लिखोगे, 4 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करके लिखोगे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म. एंड देन लास्ट कॉलम में क्या है, वैल्यू. वैल्यू मतलब जब आप उसको सॉल्व करोगे आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा. गॉट इट. सो नाउ लेट्स सॉल्व द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन. सेकेंड वन 16. 16 रेज टू 3 मीन्स आपको क्या करना है, अब सबसे पहले ये जो इंडेक्स फॉर्म है इसमें से आपको बेस पिक करना है. सो व्हाट इज बेस हियर, यू कैन क्लियरली सी 16 इज द बेस. गॉट इट. सो यू विल राइट 16. नेक्स्ट you will write here base as 16. After that index. Index is what, मतलब जो पावर है वो क्या है, 3 है. Got it. अब उसका मल्टीप्लीकेशन फॉर्म लिखना है आपको. So what will be the multiplication form, यहाँ 16 आया, यहाँ पे 3 एंड मल्टीप्लीकेशन फॉर्म मतलब उस नंबर को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. राइट. 16 इंटू 16 इंटू 16. गॉट इट. मीन 16 को आपको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. नाउ एज यू नो 16 इंटू 16 इज व्हाट, 256. नाउ अगेन 256 इंटू 16 आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर आपको फाइनल आंसर लिखना है. गॉट इट. सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट द टेबल. नाउ थर्ड वन, लेट अस सी. थर्ड वन में आपको क्या गिवन है, इंडाइस फॉर्म मिसिंग है बट बेस और इंडेक्स गिवन है. सो इट्स वेरी सिंपल. बेस गिवन है -8 और उसका इंडेक्स है 2, तो इसके थ्रू आप फॉर्म कर सकते हो ना इंडाइस फॉर्म. -8 और उसका पावर क्या है 2. गॉट इट. उसका मल्टीप्लीकेशन फॉर्म क्या हो जाएगा, -8 इंटू -8 मतलब आपको -8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. राइट. अब देखो 8 8 जा 64, माइनस माइनस प्लस. राइट. तो आपका वैल्यू आएगा 64. गॉट इट. और इसके पहले वाला जैसे 16 इंटू 16 इंटू 16 था. राइट. 16 इंटू 16 क्या होता है, 256. अब आप 256 को वापस से 16 से मल्टीप्लाई करो, आपको फाइनल आंसर मिलेगा. 6 6 जा 36. 6 यहाँ पे लिखोगे, 3 कैरी, 5 6 जा 30 प्लस 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 6 5 2. ऐड करो 6 9 10 4 4 0 9 6. मीन्स इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व इट. ओके. नाउ द फोर्थ वन. ओके. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट, फोर्थ क्वेश्चन में आपको इंडाइसिस फॉर्म नहीं गिवन है, बेस फॉर्म भी नहीं गिवन है और इंडेक्स भी नहीं गिवन है. डायरेक्टली आपको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म गिवन है. ओके. नाउ लेट अस सी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू आप कैसे इंडेक्स, बेस और इंडाइस फॉर्म क्रिएट करोगे. ओके. ओके. नाउ लेट्स सी. 3/7 into 3/7 into 3/7 into 3/7 मीन्स 3/7 जो पर्टिकुलर नंबर है वो क्या हो गया अपना, आपका बेस हुआ. राइट. वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स. तो वो क्या है, 4 आपका इंडेक्स है. राइट. और यहाँ पे आपका ये हो गया इंडाइस फॉर्म मतलब 3/7 रेज टू 4. गॉट इट. और वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है ना. लास्ट वन, fifth question. Here you can see only the index form is given to you. -13 raised to 4. -13 is the base. So here you will write in the base column -13.
इंडेक्स इज 4। अब -13 का इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म -13 इंटू मतलब -13 को आपको क्या करना है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. गॉट इट. सो नाउ 13 इंटू 13 इंटू 13 आपको क्या करना है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. सो एज यू नो 13 इंटू 13 इज 169 minus minus plus 13 into 13 169 minus minus plus. Now what you have to do, you have to multiply 169 and 169 and you will get the final answer. Okay, so now let's do it. 169 160 9 nines are 81 1 you will write here 8 carry 9 6 are 54 54 plus 8 62 6 carry 9 ones are 9 plus 6 15 right. Then next step 9 6 are 54 4 you will write here 5 carry 6 6 are 36 36 plus 5 41 6 ones are 6 plus 4 10 right. Then 1 into 9 9 1 into 6 6 1 into 1 1. Now you have to add all the numbers 1 4 plus 2 6 5 plus 1 plus 9 15 1 plus 2 1 plus 1 2 2 plus 6 8 1 plus 1 2 means what is the final answer here you are getting 2008 sorry 28,561. Okay, 28,561 means जब -13 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे so you will get this final answer. Okay, so here we have completed question number 1. Now let's see next question. Question number 2. Find the value. Question number 1. आपको क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है गिवन नंबर्स की. ओके, मीन्स व्हाट आपको इंडेक्स फॉर्म गिवन है. जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट इट इनटू द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म जो भी हम लोग नहीं करे और आपको कैलकुलेट करना है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन 2 raised to 10 2 raised to 10 then next 5 raised to 3. Okay, so now let's do the first and second. Okay, so now first question है आपका. Let us concentrate in the first question first. 2 raised to 10 means what? 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपको 10 टाइम्स. 2 आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 10 टाइम्स. Okay, now let's solve it. Okay, 2 2 जा 4 आपको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 है ना. 128 2 जा मतलब 128 को आपको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो यू विल गेट 256. देन 256 इंटू 2 256 को आपको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो 12 5 to the 10 plus 1 512 right. Then and then 512 multiply by 2 final answer. 2 to the 4 4 1 4 to the 4 2 1 the 2 5 to the 10 1024 means what is the final answer 1024 means आपने क्या करे जो आपको इंडेक्स फॉर्म गिवन था 2 बेस है और 10 उसका इंडेक्स है मतलब 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आपने उसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लिखे फर्स्ट. आफ्टर दैट आप मल्टीप्लाई करते गए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 6 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 128 2 जा 512 128 to the 256 256 to the 512 and then last 512 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे so you will get 1024. So that is your final answer. Now next question, question number 2 5 raised to 3. Okay, 5 raised to 3 means आपको क्या करना है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 5 into 5 into 5 right. Now you will solve it. 5 5s are 125
125 5 जा 125 को आपको क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, so 5 5 are 25. 5 you will write here to carry. 5 2 are 10. 10 plus 2 12. 2 1 carry. 5 1 are 5. 5 1 are 5 1 6. 625. It means in short you have to write the cube of 5, right? So 625 is the cube. Got it? Now next question. After question number 3, -7 multiply by -7 raised to 4 means -7 को आपको 4 times multiply करना है. और फोर्थ क्वेश्चन है -6 raised to 3. Okay, so now let's do the third and fourth question. Okay, so third one, -7 raised to 4 means आपको -7 को क्या करना है 4 times multiply करना है. Got it? -7 into -7, -7 into -7. Got it? So as you know, 7 sevens are 49, so you will write here, and minus minus plus middle sign. 7 sevens are again 49 and minus minus plus. So here you got the answer 49 into 49. अब आपको फाइनल आंसर कब मिलेगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे. These two numbers 49 into 49. Now let's multiply. 9 nines are 81. So 1 you will write here 8 carry. 9 fours are 36. 36 plus 8 44. 0. 9 fours are again 9 fours are 36. So you write here 6 3 carry. 4 fours are 16. 16 plus 3 19. So you will write here 19. Add करोगे आप 1 plus 0 1. 6 plus 4 10. 0 you will write here 1 carry. 9 plus 4 plus 1 14. 1 carry 1 plus 1 2. Means what you got here 2401. So that is your final answer. Okay. 2401 means when you will multiply -7 4 times you will get 2401. Got it? So that is question number 3. Now let's question number 4, -6 raised to 3 means what here you have to multiply -6 to the 3 times. Okay, now let's concentrate here. -6 का आपको 3 times multiply करना है. Okay, so 6 6 are 36, right? Plus minus minus plus again multiply by -6 से multiply करना है. Okay, as you know 36 6 are 216. Okay, प्लस माइनस माइनस मीन्स आपका फाइनल आंसर क्या आएगा जब -6 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे. सो यू विल गेट -216. ओके, सो कीप वन थिंग इन योर माइंड कि जब आपको नंबर्स गिवन है माइनस, अब देखो पॉजिटिव जो नंबर्स है जो प्लस में है उसका तो फाइनल आंसर प्लस में ही आएगा, राइट? बट जब आप नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे मीन्स जो नेगेटिव नंबर है उसका जो भी पर्टिकुलर पावर है, ओके, जब भी वो पावर इवन रहेगा, ओके, वेन एवर द पावर इज इवन आपका फाइनल आंसर प्लस में आएगा. ओके, जब पावर आपका इवन रहेगा, इवन नंबर्स 2 4 6 अप टू सो ऑन. ओके, तो आपका जो आंसर रहेगा वो प्लस में रहेगा. और जब भी आपका जो पावर है वो ऑड रहेगा, लाइक दिस हियर 3 1 6 सॉरी 3 1 5 7 अप टू सो ऑन, तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा हमेशा नेगेटिव. जैसे कि अभी हम लोग को मिला -6 का पावर क्या है 3. 3 is the odd number, so that is why we got the final answer is -216. Okay, -216. So here we have completed till question number 4. Next question number 5.
Question number 5, 9 raised to 3. So it's very simple. Just you have to multiply 9 3 times. 9 into 9 into 9. Means आपको क्या करना है? 9 का क्यूब कैलकुलेट करना है, right? So 9 9s are 81. 81 9s are 729, right? So that is the final answer. So ये हो गया fifth question. Sixth one is again very simple. Here the final answer will be 8 only, because here you can see 8 raised to 1 means 8 को 1 and single time लिखना है आपको. So that is 8. Okay. Now let's see the seventh and eighth question. Seventh one is 4 upon 5 raised to 3. 4 upon 5 raised to 3. Okay. So here you can see it's the rational number. So now let's see how to solve the rational numbers. 4 upon 5 raised to 3 है. It means 4 upon 5 को आप कितने times multiply करोगे? 3 times. ओके. नाउ अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप लोग हमेशा रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, जो न्यूमरेटर है वो सब एक साथ लिखोगे आप मल्टीप्लाई करने के लिए, और जो डिनोमिनेटर है वो सब एक साथ लिखोगे मल्टीप्लाई करने के लिए, राइट. अब 4 को आपको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स. 4 4 जा 16, राइट. 16 4 जा 64, so you write here 64. Next 5 5 जा 25, 25 1 जा 125, so here you will write 64 upon 125. ये क्या है आपका फाइनल आंसर. गॉट इट. देन नेक्स्ट एट क्वेश्चन. एट क्वेश्चन इज व्हाट? -1 upon 2 raised to 4. -1 upon 2 whole raised to 4. इट मीन्स व्हाट? आपको -1 upon 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स. -1 upon 2 -1 upon 2 into -1 upon 2 into -1 upon 2. ओके. सो आप क्या करोगे, जो न्यूमरेटर है वो एक साथ में लिखोगे, मीन्स -1 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, और जो डिनोमिनेटर है वो एक साथ लिखोगे. सो नाउ 1 1 से अब आपको पता है कि 1 को आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यू आर गोइंग टू गेट 1 ओनली, राइट. एंड देखो यहाँ पर माइनस की साइन नहीं आएगी, बिकॉज पावर क्या है आपका इवन नंबर है, तो आपका फाइनल आंसर तो प्लस आने वाला है. ठीक है. नाउ हियर इन द डिनोमिनेटर 2 2 4 4 2 8 8 2 16, राइट. सो फाइनल आंसर क्या है आपका? 16. 1 upon 16. ओके. मीन्स -1 upon 2 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट फाइनल आंसर एज 1 upon 16. ओके. गॉट इट. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 25. ओके. 25 or 26. Which one is was? Practice set 26 we have completed. Okay. Understood properly? So in the next lecture I will start with the next practice set 27.